So we are discussing about the general properties of the receptors. ठीक है, इनके बारे में हमने बात कर चुके हैं. थोड़ा सा दो चीजों के बारे में आगे बात करेंगे. वन इज द एडेप्टेशन फिनोमेना एंड सेकंड इज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन एंड देन सम डिटेल अबाउट द रिसेप्टर पोटेंशियल इटसेल्फ. तो इन सब के बारे में हम कभी कोई शॉर्ट नोट पूछते हैं, इसलिए इनका जानना जरूरी है. लाइटें बंद करना भाई. So what is a threshold stimulus? एक हमने देखा था एडिक्वेट स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, दोनों में फर्क है. एडिक्वेट का मतलब वो स्टिमुलस जो रेस्पॉन्स ला सके. वो रेस्पॉन्स मिनिमम भी हो सकती है और मैक्सिमम भी हो सकती है. वो एडिक्वेट है. इतना है कि एक दैट विल कॉज ए चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज एन एडिक्वेट स्टिमुलस. थ्रेशोल्ड स्टिमुलस इज दैट स्टिमुलस विच causes the membrane potential to reach or rise to such level that the action potential is created into the afferent nerve fiber. That is a threshold stimulus. So a subthreshold stimulus will be causing changes in the membrane potential, but those will not be sufficient enough to raise the potential to the action potential level. तो afferent nerve fiber में अगर सिग्नल है, then you have to apply a threshold stimulus. एडुकेट स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, वो तो क्रिएट करेगा थोड़ा सा चेंज, मगर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा, जरूरी नहीं है. सो टू जनरेट ए प्रोपोगेटेड एक्शन पोटेंशियल डाउन द एफरेंट नर्व फाइबर, a threshold stimulus needs to be applied. Then there is a phenomena like suprathreshold stimulus. Suprathreshold is more than the threshold. So what it will cause? It will cause generation of the multiple action potential in the afferent nerve. So that will be used for what purpose? To determine the gradations of the stimulus, to find out the strength of the stimulus. So if an afferent nerve fiber is firing a single action potential, it means it is just threshold stimulus. If the stimulus strength is increased, more depolarization will be there, and that depolarization threshold level will be maintained for a longer duration of time, so that multiple action potentials are generated, and those when reaches to the central nervous system, to the conscious level, will generate a sensation that the higher stimulus strength has been applied to the surface of the body. So that is the subthreshold and the suprathreshold stimuli. Then there is something like Weber-Fechner's law. This applies to the slightly higher strength of the stimulus. This can be understood with the help of an example only. Say, if I put 1 kilogram weight on my arm, then certain changes are there, the arm goes down because of the weight. So a stimulus has been applied and that is causing a response, and that is appreciated. The weight is appreciated by filing down of the arm downward. ज़्यादा वजन रखेंगे तो आर्म ज़्यादा नीचे जाएगी, हम अप्रिशिएट करेंगे कि ज़्यादा स्टिमुलस स्ट्रेंथ आ रही है, बटन वजन ज़्यादा है. तो 1 किलो का वेट आपने रखा एंड इट हैज कॉज सर्टन चेंज. नाउ इफ आई वांट टू अप्रिशिएट अ चेंज, 1 किलो में अब मैं 100 ग्राम और ऐड कर दूं, so I am increasing the stimulus strength. Will I be able to appreciate that change? 1 किलो के ऊपर मैंने अगर 10 ग्राम का वेट लगाया है, तो क्या वो चेंज जो आया स्टिमुलस स्ट्रेंथ में, क्या वो मैं अप्रिशिएट करूंगा? मैं 100 ग्राम का लगा दूंगा तो अप्रिशिएट करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा. सो दैट इज द Weber-Fechner's law. Gradations of the stimulus strength are discriminated approximately in proportion to the log of the stimulus strength. स्टिमुलस स्ट्रेंथ जो आप दे रहे हैं उसमें चेंज अगर आ रहा है तो उससे लॉग स्केल से चेंज होना चाहिए उसकी मैग्नीट्यूड के अंदर, तभी जाके वो आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे. ये मैंने एग्जांपल इसीलिए दिया था. 1 किलो के वजन पे 100 ग्राम रखना जरूरी है, तब जाकर के डिफरेंस अप्रिशिएट होगा कि वजन बढ़ गया है. 10 ग्राम लगाने से नहीं होने वाला. सो दैट इज द Weber-Fechner's लॉ. ये बाकी फिजिक्स है, इससे हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, जरूरत भी नहीं है उसको जानने की. ये उसी का दूसरा रूप है, पावर लॉ कहलाते हैं. ये आपके डिफरेंट रिसेप्टर्स का डायग्राम है, किताब में भी दे रखा है. 2 चीज अप्रिशिएट करने की इसमें, 2 थिंग्स आर देयर. दिस इज वन रिसेप्टर, दिस इज अनदर रिसेप्टर. ये 2 रिसेप्टर ऐसे हैं विच आर थिकली एनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर. दे आर multiple layers of the connective tissues are there in this one as well as in this one. These receptors are those which rapidly adapt to the stimulus. So if the receptor is highly encapsulated or fully encapsulated, then this receptor will be able to accommodate or rather adapt very rapidly. So such receptors will be able to respond
टू मल्टीपल सक्सेसिव स्टिमुलाई। जिन रिसेप्टर्स में आपके कनेक्टिव टिश्यू शीथ है बाहर की तरफ, एनकैप्सुलेशन है, वो रिसेप्टर उनके अंदर जो नर्व एंडिंग्स हैं वो बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाती हैं। इसका मतलब इट कैन अप्रिशिएट सेकंड स्टिमुलस वेरी रैपिडली। सो these receptors which are encapsulated receptors fully, they respond to rapid repetitive stimuli, so they respond to the frequency, vibrations को respond करते हैं। So Pacinian corpuscles and Meissner's corpuscles are two receptors which respond to the vibration sense of different gradations of force. Pacinian corpuscle ज्यादा higher frequency को respond करता है, Meissner corpuscle उससे कम को respond करता है। So they respond to the frequency. Then partially encapsulated receptors and bulb of Krause, Ruffini and organs. These are the two receptors which adapt slowly. Adapt तो करते हैं मगर slowly करते हैं। So they respond to different type of the stimuli. ये vibration को respond नहीं करेंगे मगर अलग तरह के response देंगे, ठीक है। Then third variety is the naked nerve endings. Most of the time at most of the places where these free nerve endings are found, they respond, or they rather we can say don't adapt at all. They are non-adapting receptors. Free nerve endings है ये adapt नहीं करती usually. So that is the, depending upon the structural characteristics, the receptors are responding to different type of the stimuli in the periphery. वही चीज है, उसके बारे में वापस आएंगे हम दोबारा। Then come the receptor potential. हर रिसेप्टर में मौजूद होता है। एवरी रिसेप्टर एट द पेरिफेरी और wherever it is located generates a change in the membrane potential when adequate threshold stimulus is applied. So that adequate change is the change in the membrane potential. So that change in the membrane potential is the generation of the receptor potential. उसको हम receptor potential कहते हैं। That can also be called a generator potential. Receptor potential और generator potential. कैन यू गिव एन एग्जाम्पल? आपने कुछ ऐसा पढ़ा है जो रिसेप्टर पोटेंशियल के रूप में जाना जा सकता हो? विच इज द लोकल रेस्पॉन्स? एग्जैक्टली रिसेप्टर पोटेंशियल तो नहीं है मगर लोकल रेस्पॉन्स होती है इसी तरह की। ध्यान है कुछ ऐसा पढ़ा है अब तक? पढ़ा है क्या? नाम बोला कुछ? बोलो। यस, एंड प्लेट पोटेंशियल इन द स्केलेटल मसल इज अ लोकल रेस्पॉन्स फिनोमेना। दिट इज नॉट एक्शन पोटेंशियल, इट इज अ ग्रेडेड रेस्पॉन्स। एसिटाइल कोलिन कितनी आती है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें चेंज कितना आएगा और स्केलेटल मसल में एक्शन पोटेंशियल कितने जनरेट होंगे। सो फॉर द जनरेशन ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल एडिक्वेट स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड। ओके, दैट चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल बी देयर। दैट रेस्पॉन्स इज ऑलवेज a graded response. It means at a receptor level action potential is never generated. जो इलेक्ट्रिकल चेंज डेवलप हो रहा है रिसेप्टर के लेवल के ऊपर वो रिसेप्टर पोटेंशियल ही कहलाता है और वो ग्रेडेड रेस्पॉन्स होती है, या कह सकते हैं इट इज ए लोकल रेस्पॉन्स, इट इज नॉट अ प्रोपोगेटेड एक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्रेडेड रेस्पॉन्स इज दैट इफ a stimulus is applied, a small change is there. If second stimulus is applied at the same point, the previous one gets added to the later one and the response is increased. So level of membrane potential changes with the application of the continuous stimulation. That is called as the graded response. कम स्टिमुलस दिया, कम पोटेंशियल डेवलप हुआ, बढ़ा दिया पोटेंशियल बढ़ गया, और बढ़ा दिया और पोटेंशियल बढ़ गया, और बढ़ा दिया थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, और बढ़ा दिया मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ। So that is a grading of the response. Okay. But action potentials are never summated, mind it, and they are not action potentials. Then this local response or receptor potential can be either, means it can be a depolarizing response which is normally excitatory, or it can be also a hyperpolarizing response. नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है। सोडियम की एंट्री इनहिबिट भी हो सकती है, पोटेशियम की एग्जिट बढ़ सकती है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है। बट देयर इज ओनली वन एग्जांपल वेयर द हाइपरपोलराइजिंग रेस्पॉन्स इज देयर, एज आई सेड in the previous class. Rods and cones in the retina generates a hyperpolarizing response, while the rest of the receptors in the body, they generate the depolarizing response, and they are graded, they can be added together. And then when this threshold level stimulus is applied, the receptor potential reaches to the threshold level, a propagated action potential is generated at the first node of Ranvier in the myelinated nerve fiber.
In the non-myelinated nerve fiber, it is the electrotonic type of the conduction. It is a electrotonic type of the conduction. Then the phenomena of summation is there. Summation occurs in the soma of the neuron. Summation occurs in dendrites also. Summation does not occur in the action potential because that is all and none phenomena. And summation can occur at the level of the receptor also. So two types of the summations are found. One is the summation means addition or subtraction. Spatial summation and temporal summation. First we take the temporal summation. Suppose at a point of in the skin, we are applying a stimulus. एक स्टिमुलस लगाया, इमीडिएटली दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, उसी जगह लगा रहा हूं. Point is same. I am applying repeated stimulus there. This will get summated together at the receptor level to generate the potential there. So this type of the summation where the single point gets repeatedly stimulated and gets summated, that is known as the temporal type of the summation. Temporal time के हिसाब से समेट हो रहा है, repeatedly एक ही जगह पे स्टिमुलस आ रहा है. The second type of the summation is spatial or spatial type of the summation where there is an addition or subtraction of the neural influence from two sides. एक मैंने यहाँ लगाया स्टिमुलस और एक स्टिमुलस इसके पास में लगाया, ये दोनों समेट हो सकते हैं. They both can summate together, but the sites are different. Nerve fiber is same. So such type of the summation is known as spatial type of the summation. Space में जो summation हो रहा है वो spatial summation है. Repeated एक जगह पे stimulus हो रहा है वो temporal type of the summation. So both types of the summation are observed at the receptor level also. Temporal summation and spatial type of the summation. Then there is a phenomena of adaptation. That is a normal phenomena we observe every day. That is, if stimulus is applied continuously at a site, then that receptor will stop responding. Receptor respond नहीं करेगा. It means it has adapted to the stimulus already. हम देखते हैं टच वाला स्टिमुलस यहाँ अगर लगाए रखेंगे थोड़ी देर बाद में टच महसूस होना बंद हो जाएगा. और सबसे कॉमन एग्जांपल विजन का भी है. हमने आप कैंडल लगाइए और कैंडल की लौ को देखते रहिए, थोड़ी देर में वो लौ दिखनी बंद हो जाएगी आपको. रिसेप्टर्स हैव अडैप्टेड. इट विल नॉट बी विजिबल एट ऑल. आपके सामने से गायब हो जाएगी. आप अंगुली को देख लीजिए, लगातार देखेंगे अंगुली दिखनी हो सकता बंद हो जाएगा. सो दैट इज एडेप्टेशन ऑफ द रिसेप्टर्स. नहीं, इसमें इतना ज्यादा नहीं आएगा, वो मोमबत्ती से ज्यादा आता है, क्योंकि ये उंगली जो है ना ये हिलती रहती है थोड़ी सी. अगर ये वाइब्रेट करे तो इम्पल्स आपका जो इमेज बन रही है वाइब्रेट करेगी, एडेप्टेशन कभी नहीं होगा. इसीलिए हम एडेप्ट नहीं कर पाते विजन में ज्यादातर. जब तक कि आप टकटकी लगा के नहीं देखें, आंख का रोटेशन नहीं रोकेंगे तो एडेप्टेशन नहीं होगा. ठीक है. सो इट अकर्स एट द रिसेप्टर लेवल एंड एट द नर्व फाइबर लेवल. देयर आर टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द एडेप्टेशन. दोनों का अलग अलग मैकेनिज्म है. से फॉर एग्जांपल रिसेप्टर लेवल का देखें, यहां नहीं आएगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टिंग रिसेप्टर. इसी से एग्जांपल समझ में आएगा. दिस इज द पैसिनियन कॉर्पसल. In the center there is a nerve fiber is going on. In the interior of the Pacinian corpuscle, the nerve fiber is naked nerve fiber, means it does not contain the myelin sheath. Myelin sheath starts from this place. उसको कहते हैं फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर से माइलिन शीथ शुरू हो रही है, उसके अंदर माइलिन शीथ नहीं होती. और ये सारा आपका कनेक्टिव टिश्यू लैमेली है इसके चारों तरफ. सो व्हेन वी अप्लाई ए स्टिमुलस हियर बाय प्रेशर, वाइब्रेशन जब लगाते हैं तो हम प्रेशर ही डाल रहे हैं बेसिकली उसके ऊपर. यहाँ जब प्रेशर लगाया तो ये प्रेशर ने इसको डिफॉर्म किया. द प्रेशर डिफॉर्म्स द कनेक्टिव टिश्यू लैमेली एंड कॉजेज डिफॉर्मेशन ऑफ द नर्व फाइबर व्हिच इज लाइंग इंटीरियर. ओके. एंड दैट बेंडिंग ऑफ द नर्व फाइबर कॉजेज ओपनिंग ऑफ द सोडियम चैनल एंड a partial depolarization or receptor potential get generated, which gets propagated if the stimulus strength is adequate, will generate an action potential. But immediately what happens, because of the viscoelastic properties of these connective tissues, they rearrange themselves immediately, and because of the rearrangement, even the pressure is there, that pressure is not getting transmitted to the central nerve fiber at all. ये लैमेली आपस में इमीडिएटली एडजस्ट करती हैं और जो प्रेशर लग रहा था उसको डेसिपेट कर दिया जाता है और नर्व फाइबर का डिफॉर्मेशन खत्म हो जाता है. So nerve fiber has stopped responding to that stimulus. A fresh stimulus need to be applied to cause further deformation and response need to be there. That's why this receptor is able to respond to the rapid repetitive stimuli because it adapts fast.
फास्ट एडेप्टिंग रिसेप्टर है, इसीलिए ये रेस्पॉन्ड कर पाता है। सो फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एडेप्टेशन is because of change in the viscoelastic properties of the encapsulated receptors in the body. जो नॉन कैप्सुलेटेड है उनमें ये फिनोमिना नहीं होगी, वो एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। नेकेड नर्व एंडिंग डू नॉट एडेप्ट एट ऑल, उसमें ये होता ही नहीं इस तरह का फिनोमिना। सो दैट इज एडेप्टेशन वन मैकेनिज्म। द सेकेंड मैकेनिज्म अकर्स इन द नर्व फाइबर, एफरेंट नर्व फाइबर। वी नो दैट इफ द स्टिमुलस कंटिन्यूज, मैंने यहाँ टच किया, रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप हुआ, नर्व फाइबर में इंपल्स आ रहा है, ओके, एंड इफ दैट कंटिन्यूज देन द सोडियम चैनल्स ग्रेजुअली क्लोज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्टिमुलेशन। जो फास्ट सोडियम चैनल्स खुली थी एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए, वो अब धीरे धीरे वापस बंद हो गई लगातार स्टिमुलेशन से। एंड बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सोडियम चैनल्स और इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम चैनल्स, there is no transmission further of the action potential and information does not reach to the brain. So that is the second mechanism of adaptation of the nerve fiber. Of course, the receptor potential maximum amplitude which can be generated is about 100 millivolt. कितना हुआ मतलब 90 तो ऑलरेडी होता है, -90, उसको 10 और बढ़ा सकते हैं। And when the receptor potential rises to the threshold level we have seen, it causes generation of the propagated action potential in the afferent nerve fiber. So depending upon the adaptation, the receptors can be classified into three categories. Fast adapting receptors, they are also known as phagic receptors. Fast adapting or phagic receptors are there. Slow adapting are tonic receptors, and they are non-adapting receptors are also there. So Pacinian corpuscles and Meissner corpuscles, they are fast adapting phagic receptors. End bulb of Krause and Ruffini end organs ending around the hair follicles, they are slow adapting receptors. They are slow adapting receptors. And free nerve endings, which mostly respond to the pain sensation, they are non-adapting receptors. So all those nerve endings which serve the sensation of the pain, they will not adapt because pain is created signaling damage to the body tissues. बॉडी टिश्यू में अगर कहीं भी डैमेज है तो पेन क्रिएट होगा। वो डैमेज किसी भी वजह से क्रिएट हो सकता है, बट एज लॉन्ग एज दैट डैमेजिंग स्टिमुलस इज देयर, पेन सेंसेशन और पेन रिसेप्टर्स विल नेवर अडेप्ट टू इट, एंड दैट इज ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव टू द सर्वाइवल ऑफ द एनिमल किंगडम। ये आ गया, ऑलरेडी देख लिया हम। क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व फाइबर्स यू ऑलरेडी नो, पढ़ा दिए क्या ये सब? अच्छा, अभी देखते हैं क्या पढ़ा है। ये क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है ना, ठीक है, छोड़ दें इसको। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? नहीं, थोड़ा सा कैसे हो, तो पूरा ही पढ़ाया हुआ है। चलिए पहले इसको देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर, 4 कैटेगरीज ऑफ द नर्व फाइबर्स आर देयर, ए, बी एंड सी, 3 कैटेगरी हैं, एंड ए आर फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, ए अल्फा, A beta, A gamma and A delta. A alpha and A gamma are motor fibers. A beta and A delta are sensory fibers. ठीक है? Then B type of the fibers are there. ये सारी डिटेल आपने दे रखी किताब में। कंडक्शन वेलोसिटी माइलिन शीट की डायमीटर के हिसाब से डिपेंड कर रही है, रेंजिंग फ्रॉम 20 to 120 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है? ओके। B type fibers are also myelinated fibers. Where they are found, यहाँ दे रखा है, वैसे तो पढ़ के बोल सकते हो। They are preganglionic fibers of the autonomic nervous system. Maybe sympathetic, parasympathetic, doesn't matter. They are thinly myelinated fibers. Okay, they are B category fibers. And C are non-myelinated fiber, subserving the sensation of the crude touch, temperature, and pain. They are non-myelinated fibers. Then this one is the classification for the sensory fibers only. ये सिर्फ sensory fibers का है, इसमें 4 कैटेगरी हैं, type 1, type 2, type 3 and type 4 fiber. Type 1 is further classified into 2 categories, first A and first B.
They are fastest conducting fibers in the body. They are also similar to the A alpha fibers in the previous classification. जो A alpha fiber थे वही यहाँ 1A और 1B category है. So they are thickly myelinated, fastest conducting fibers in the body. They are sensory fibers. So they are arising from either muscle spindle in the skeletal muscles of the body or Golgi tendon organs in the tendons of the body. यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जाती है वो आपके खड़े रहने के लिए, बॉडी की पोजीशन मेंटेन करने के लिए, ड्यूरिंग स्टैटिक एंड ड्यूरिंग मोशन, भागने दौड़ने के मुड़ने के दौरान जो आपकी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंचनी चाहिए वो इन फाइबर्स के द्वारा जाती है, पोजीशन सेंस की. देन वी आर ऑफ कोर्स प्री गैंग्लियोनिक. ये तो दूसरा वाला आ गया. ये कौन सा आ गया? अच्छा, ए अल्फा बीटा नहीं, 1A 1B सेंसरी. टाइप सेकंड फाइबर, हम सेंसरी की बात कर रहे हैं, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हो गया. टाइप सेकंड फाइबर्स आर ऑल सेंसरी फाइबर्स. इसमें मोटर नहीं होते, ठीक है. टाइप सेकंड आर सेंसरी फाइबर्स एंड ऑल मैकेनोरिसेप्टर्स इन द बॉडी they are supplied by the type second afferent fiber. Meissner's corpuscles, Pacinian corpuscles and bulb of Krause, ये जो मैकेनोरिसेप्टर्स है वो सारे टाइप सेकंड फाइबर से सप्लाई होते हैं. टाइप थर्ड फाइबर्स ट्रांसमिट पेन, कोल्ड एंड टेम्परेचर. टाइप थर्ड फाइबर्स आर सिमिलर टू ए डेल्टा फाइबर्स. इट मीन्स दे आर ऑल्सो थिनली माइलिनेटेड फाइबर्स एंड दे ट्रांसमिट द सेंसेशन ऑफ द पेन. पेन हम आगे देखेंगे, दो तरह का होता है. फास्ट पेन होता है, स्लो पेन होता है. तो जो फास्ट पेन है जिसको हम लोकलाइज कर सकते हैं कि बॉडी में कहां से आ रहा है, वो ए डेल्टा फाइबर से जाता है. और जिसको हम प्रॉपरली लोकलाइज नहीं करते, आपने प्रिक करवाया, यहाँ पे हेमाटोलॉजी में प्रिक लगा, वहां पे दर्द हुआ, आपको पता है यहाँ पिन चुभी है, वो आपका फास्ट पेन है. आधा घंटे बाद में भी उंगली का पूरा पोरवा दुखता रहता है, यहाँ पे एग्जैक्टली लोकलाइज नहीं कर सकते पेन आ कहां से रहा है. वो स्लो पेन फाइबर्स है. उसका ट्रांसमिशन पाथवे अलग है, पहले वाले का ट्रांसमिशन पाथवे अलग था, आगे देखेंगे, ठीक है. एंड टाइप 4 फाइबर्स आर जस्ट लाइक द टाइप सी फाइबर, नॉन माइलिनेटेड फाइबर कंडक्टिंग द पेन एंड टेम्परेचर सेंस. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द फाइबर्स. फंक्शनल चीज है ये. आपने देखा होगा जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो ये एरिया सुन्न पड़ जाता है, आपका सुन्न हो जाता है, यहाँ पे भी सुन्न आ जाता है और पैरों में झंझनाहट होने लग जाती है. वाइब्रेशन सेंस इज देयर, सुन्न पड़ गया. विच फाइबर्स आर इन्वॉल्व? आपने लोकल एनेस्थीसिया लिया, जाइलोकेन, प्रोकेन बहुत लगाते हैं, दांतों में भी लगाते हैं, निकालते हैं, जो काम करते हैं, यहाँ स्प्रे करते हैं, यहाँ पेन सेंसेशन खत्म हो गया. मगर अगर आप इसको टच करेंगे, खींचेंगे तो पता लगता रहेगा आपको. तो ये जो फाइबर्स, ये जो सेंसेशन कुछ फाइबर्स ले जा रहे थे, वो किस खास स्थिति से अफेक्टेड होते हैं, दूसरे नहीं होते. सो हाइपोक्सिया, प्रेशर, सबसे पहली बात है प्रेशर. प्रेशर कौन से फाइबर्स को अफेक्ट करता है? माइलिनेटेड फाइबर्स को ज्यादा अफेक्ट करता है, ए फाइबर को. तो जो सुन्न पड़ता है ना आपका एरिया, उसका मतलब है कि लार्ज डायमीटर फाइबर्स का फंक्शन इनहिबिट हो गया, कम हो गया, क्यों? दबे रहने से वहां पे वास्कुलर सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई, हाइपोक्सिया क्रिएट हुआ, फंक्शनल लॉस हो गया टेम्पररी नर्व फाइबर्स का, और आपको सेंसेशन आना बंद हो गया, ठीक है. जबकि एनेस्थीसिया जब हम देते हैं, लोकल यहाँ पे स्प्रे करते हैं, देन दैट हैज गॉट मोस्ट इफेक्ट अपॉन द सी टाइप ऑफ द फाइबर विच कैरीज द पेन सेंसेशन. तो पेन को ब्लॉक करना है तो आपको ए फाइबर्स को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है. अगर आप यहाँ टच करेंगे तो खींचेंगे तो महसूस होगा, मगर पेन महसूस नहीं होगा. डिफरेंट फाइबर्स आर देयर, सो देयर इज अ डिफरेंट रेस्पॉन्सिवनेस टू द प्रेशर, to the hypoxia and to the local anesthetics. Different type of fibers are involved. That is another way of classifying the nerve fiber. Now we start with the another topic. हम आगे बढ़ रहे हैं, रिसेप्टर्स की बात कर ली, सेंसेशन के बाद में आएंगे. पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन कैसे होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर. तो सिनैप्स क्या होती है? सिनैप्स, इट इज ए कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द टू एक्साइटेबल सेल्स ऑफ द ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम सिनैप्स कहते हैं. एंड व्हाट इज एन एक्साइटेबल सेल और विच सेल इज एन एक्साइटेबल सेल?
वही सवाल बार बार उभर के आ जाता है, कौन से होते हैं बॉडी में? लीवर में भी है सेल, तो क्या वो कर सकता है? तो कौन डिटरमिन कर रहा है इसे? कौन कर रहा है कि स्केलेटल मसल में होगा, स्मूथ मसल में होगा, कार्डियक मसल में होगा, नर्व फाइबर्स में होगा? Resting level of the membrane potential is the determining factor. So any tissue or cell in the body exhibiting a resting membrane potential of -40 or more than that will be an excitable tissue. वो generate कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे, ठीक है? So these synapses between the cells are of two types. It can be a chemical type of the synapse or it can be an electrical type of the synapse. मोस्ट ऑफ द टाइम जो टिपिकल इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है, जहाँ की एक्शन पोटेंशियल के रूप में ट्रांसमिट हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ये ह्यूमन ब्रेन के अंदर अब तक डिफाइंड नहीं है। हो सकता है कहीं कहीं पे वो एनिमल्स में अवेलेबल है ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर फाउंड इन द कार्डियक मसल ऑल्सो, इन द स्मूथ मसल्स ऑल्सो। वो हम देखेंगे कैसे होती है। सो टू टाइप, chemical and electrical synapses. The most common synapses in the central nervous system are the chemical type of the synapses. They are not electrical. So electrical synapses कहाँ बनेंगे? They are generated via the gap junctions. पढ़ा होगा गैप जंक्शन के बारे में, सेल टू सेल एडिशन जब पढ़ते हैं हम, किस तरह के हो सकता है, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोजोम, हेमीडेस्मोजोम, these are the cellular links. So wherever the gap junctions are present in between the two excitable tissue, then that there is a site of the electrical synapse. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहाँ होगी? जहां भी गैप जंक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होगी वहां पे, ठीक है? कहाँ मिलते हैं ये? स्मूथ मसल्स में मिलेंगे और कार्डियक मसल्स में मिलेंगे। So electrical synapses can found in the CNS also, between the glial cells they are there, between neurons they are reported, not maybe in the human beings but animals में होती हैं ये, between neurons and glial cells present in many parts of the CNS, and the main difference is that electrical synapses conduct in both directions. इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में भी जा सकता है, इस न्यूरॉन से इसमें भी जा सकता है। केमिकल सिनेप्सेस में कभी नहीं होता ऐसा, it is always a unidirectional flow. So chemical synapses are always unidirectional, while the electrical synapses are bidirectional. दोनों तरफ फ्लो हो सकता है इंफॉर्मेशन। These electrical synapses are supposed to be known as the slow pass filters. वहां से कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसमिट लोकल रेस्पॉन्सेज फास्टर देन दी एक्शन पोटेंशियल। एक सेल से दूसरे सेल पे जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो बहुत जल्दी ट्रेवल करती है। हार्ट में हमने देखा है कितना फास्ट ट्रांसमिशन होता है इंपल्स ऐसे नोड से वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए। एंड द एक्टिविटी ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस और गैप जंक्शन कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय, कैन बी चेंज बाय द वोल्टेज। सेल में वोल्टेज कितना है वो डिटरमिन करेगा कि कैल्शियम ट्रांसफर कितना हो रहा है और आयनिक मूवमेंट कितना हो रहा है। pH, calcium and G protein receptors are the factors which modulate the activity of the electrical synapses at the gap junctions in the body. So what are gap junctions? ये पढ़ा हुआ है gap junction? गैप जंक्शन के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले पढ़ लिया होगा ने। कनेक्सॉन है, कनेक्सिन है, 6 subunits are there, founded, they are causing arranged in such a way that they form a sort of channel through which the ions can pass. पढ़ा है नहीं? तो है अच्छा, कोई बात नहीं। So these gap junctions where two smooth muscle cells or the cardiac muscle cells इंटरकैलेटेड डिस्क में, खासतौर से हार्ट के अंदर, यहाँ पे ये कनेक्शन होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं जहाँ दो सेल मेम्ब्रेन मिलती हैं। वहां पे प्रोटीन होता है जिसकी 6 सब यूनिट है। इस तरह अभी आएंगे उसके डायग्राम आएगा। 6 सब यूनिट्स आर देयर एंड दे आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे एनक्लोज और सराउंड अ सेंट्रल कैनाल और कैविटी इज देयर थ्रू विच द आयंस कैन पास। So when a potential change is taking place and is passing through, then that causes a conformation change in the orientation of these 6 subunits, and when that change occurs, then it allows the opening of the channel which causes ion to flow through them. Okay, so connection is there
कनेक्सिन ईच सब यूनिट इज देयर, 6 में से हर एक की 25,000 डाल्टन यूनिट्स है. दे आर कंडक्टिंग इन बोथ डायरेक्शन. सम कंडक्ट मोर रैपिडली इन वन डायरेक्शन देन द अदर डायरेक्शन, एंड दैट इज नोन एज अ रेक्टिफिकेशन. ये शब्द पहले आया हुआ है कहां पे, कहां आया है? ये मैंने पढ़ाया है, मैंने भी पढ़ाया है. मैंने बोला था एनोमलस रेक्टिफिकेशन टाइप एक चीज होती है. जस्ट रिमेंबर द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल, फेज 0, फेज 1, प्लेट्यू फेज, रैपिड रिपोलराइजेशन फेज एंड नॉर्मल फेज. ये 5 फेज हमने वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल की बात की थी. इन द प्लेट्यू फेज विच इज द लॉन्गेस्ट फेज, there is entry of the calcium, okay, and there is slow entry of the sodium and slow exit of the potassium ion. And we have already seen that potassium across the membrane has got bidirectional mobility. पोटेशियम दोनों तरफ आराम से आ जा सकता है, कोई रोक नहीं है उसके लिए, ठीक है ना. मगर प्लेट्यू फेज के दौरान पोटेशियम की एक तरफ की मोबिलिटी कम हो जाती है, दूसरी तरफ की मेंटेन रहती है. दिस इज unidirectional change in the movement of potassium ion. That is rectification, and that is anomalous rectification also. So rectification means change in the unidirectional movement of that ion or particular ion is known as rectification, and in heart it is known as anomalous rectification. So some channels conduct ion more in one direction in comparison to the other direction. जैसे गैप जंक्शन है, हमने कहा दोनों तरफ ट्रांसमिट कर सकता है ये, तो एक सेल से इस सेल तक हो सकता है फ्लो पोटेशियम का कम हो, इधर से इधर जब जा रहा है गैप जंक्शन के थ्रू तो बढ़ सकता है ज्यादा. दैट इज द फिनोमेना ऑफ रेक्टिफिकेशन. एंड द चैनल्स कैन बी ओपन एंड क्लोज एंड कैन बी रेगुलेटेड और रादर आर रेगुलेटेड मेनली बाय द चेंज इन द इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कंसंट्रेशन. दैट इज द मेन रेगुलेटर, और हाइड्रोजन आयन ऑफ कोर्स. ये आपका दोनों तरह का डायग्राम है. ये क्या दिखा रखा है, दिस इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. बीच में कोई गैप नहीं है दोनों के, ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन है, ये कनेक्शन एंड दे आर जॉइंड टुगेदर. सो इफ एनीथिंग इज टू मूव फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, इट हैज टू मूव थ्रू दी चैनल्स ओनली. एंड दिस इज a chemical type of the synapse. A finite gap is there between the presynaptic membrane and postsynaptic membrane. So this is a chemical type of the synapse. This is a electrical type of the synapse. इसमें सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल अपोज हो जाती है एक दूसरे के, इसमें नहीं होता, इसमें गैप होता है केमिकल के अंदर. उसी को दूसरे ढंग से दिखाया है. सेम थिंग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. ये कनेक्शन कनेक्शन आ गया. अलग अलग तरह के मेरे को अच्छे लगते हैं डायग्राम, तो मैं उतार लाता हूं. सो केमिकल सिनेप्सिस, देन वो इलेक्ट्रिकल का काम खत्म हुआ. केमिकल सिनेप्सिस कैन बी एनाटॉमिकली डिफरेंट टाइप. कैसी दिखती हैं वो उस पर डिपेंड करता है. तो ए सिनेप्स कैन बी एक्सोडेंड्राइटिक. एक न्यूरॉन का एक्सोन आ रहा है, दूसरा न्यूरॉन यहां मौजूद, उसके डेंड्राइट्स हैं ये, और एक्सोन और डेंड्राइट आपस में सिनेप्स कर रहे हैं, उसको कहते हैं एक्सोडेंड्राइटिक सिनेप्स. सबसे कॉमन सिनेप्टिक कनेक्शन यही होते हैं ब्रेन के अंदर, मोस्ट कॉमन. देन एक्सोसोमैटिक. एक्सोन आ रहा है, डेंड्राइट से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, डायरेक्ट सेल बॉडी पे आ गया हो, तो एक्सोसोमैटिक हो गया हो. ये रिलेटिवली कम होते हैं, मगर ये वो सिनेप्सेज है जिसका पोस्ट सिनेप्टिक सेल के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, तो सीधा सेल पे आ गया हो, उसमें डेक्रीमेंटल कंडक्शन हुआ ही नहीं बिल्कुल ही. तो इफ वी वांट ए मोर स्टिमुलस इमीडिएट इफेक्टिव, देन इट हैज टू बी एक्सोसोमैटिक टाइप ऑफ द कनेक्शन. एंड थर्ड, इट कैन बी एक्सोएक्सोनिक. एक एक्सोन दूसरे एक्सोन से कम्युनिकेट कर रहा है, न तो डेंड्राइट से कर रहा है न सेल बॉडी से कर रहा है, सीधा एक्सोन पे चला गया. ऐसा क्यों? ऐसा क्या करना चाहता है वो? अगर कोई एक्टिविटी बिगन हुई है, उसको रोकना है, तो आप आगे जाकर के रास्ता बंद कर दो. आगे डिटेल देखेंगे कब काम आता है ये. सो सिनेप्स कैन बी एक्सोएक्सोनिक टाइप ऑफ सिनेप्स. ये जो सिनेप्स है यूजुअली इनिबिटरी होती है. एक्सोएक्सोनिक सिनेप्सेज आर ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इनिबिटरी इन नेचर. ये रास्ते को बंद करती हैं, खोलती कभी नहीं. So these synapses then, because they are chemical synapses, we call them, they use chemicals which are known as neurotransmitters, transferring information from one neuron to another neuron
uses a chemical that we call a neurotransmitter. And there are at certain synapses or by certain neurons, some other chemicals are also released along with the neurotransmitters, which do not have receptor at the postsynaptic membrane, but they can modify the activity of the neurotransmitter. Such substances are known as neuromodulators कहते हैं उनको, ठीक है. So synapse is, as you can see, junction between the two neurons is a synapse, and in that anatomically we have got a presynaptic terminal, we have got a synaptic gap is there, and we have got a postsynaptic terminal. Presynaptic membrane is there, terminal is there, गैप आएगा बीच में और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आएगी. तो तीन कंपोनेंट हैं इसके और तीनों की अपनी अपनी अहमियत है. दैट यू कैन सी हियर. दिस इज द न्यूरॉन विच इज ब्रिंगिंग द एक्शन पोटेंशियल इंफॉर्मेशन. दिस इज प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. दिस कैन बी प्रेजेंट इन वेरियस. इसकी शक्ल अलग तरह की हो सकती है. सिनेप्टिक नॉब भी कह सकते हैं, सिनेप्टिक बटन भी कह सकते हैं, कई तरह के नाम दिए हैं डिपेंड अपॉन द शेप. सो दिस इज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज अ सिनेप्टिक गैप, and this is the postsynaptic membrane. So three structures are necessary for the presence of the chemical synapse. As I have said, presynaptic terminal can be called or can be seen as a presence of terminal knob के रूप में हो सकता है, बटन के रूप में हो सकता है, एंड फिट के रूप में हो सकता है और सिनेप्टिक नॉब्स के रूप में. Different names are given, different shapes are there in different parts of the central nervous system or the body. So how does the transmission takes place? ये अब कॉमन सवाल आ गया जो हम ज्यादातर पूछते हैं थियरी के अंदर. सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की क्या मैकेनिज्म है, ठीक है. So mechanism of synaptic transmission. सवाल हम क्यों जानना चाहते हैं ये सब, जरूरत क्या है? ये प्रोसेस या स्टेप जो हम दिखा रहे हैं इसको जानने की जरूरत क्या है? डू वी रियली नीड फॉर पेशेंट केयर? अल्टीमेटली एम क्या है डॉक्टर बनने का? पेशेंट केयर. दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स एंड देयर आर मेनी स्टेप्स वेयर वी हैव फाउंड दैट सर्टेन केमिकल्स व्हिच वी हैव सिंथेसाइज्ड कैन बी गिवन टू द पेशेंट एंड कैन इंटरप्ट दैट पर्टिकुलर पाथवे. हम यहाँ पे इसको इंटरवीन कर सकते हैं पेशेंट के बेनिफिट के लिए. इसलिए ये सारे स्टेप जरूरी है जानने का. अलग अलग स्टेप है और कई दवाइयां ऐसी जो हर स्टेप पे हमको अवेलेबल है मॉडिफाई करने के लिए सीएनएस की एक्टिविटी के लिए. सो मैकेनिज्म ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इज अराइवल ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. तो एक एक्सोन है जिसपे जो इंपल्स आ रहा है वो एक्शन पोटेंशियल के रूप में ही आ रहा है. ध्यान दीजिएगा. ऑन द एक्सोन the nerve impulse travels in the form of the action potential, propagated action potential is there. So at the presynaptic membrane, when the action potential reaches to the presynaptic membrane, then at that membrane it causes opening up of the calcium channel. यहाँ पे एक कैल्शियम चैनल खोलता है. These calcium channels are voltage regulated calcium channels. वहां पे आप स्ट्रेच करेंगे तो नहीं खुलेगी, ठीक है ना, और कोई चेंज करेंगे तो नहीं, मैकेनिकल दबाएंगे तो नहीं खुलेगी. दे आर वोल्टेज गेटेड. एक्शन पोटेंशियल से जो वोल्टेज चेंज हो रहा है उससे ये चैनल्स खुल रही हैं. सो दे आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स. इट ऑल्सो मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल इज गोइंग टू डिटरमिन हाउ मच नंबर of the calcium channel need to be opened. That will ultimately determine the response of the postsynaptic membrane. So action potential का magnitude क्या है ये determine करेगा कि कितनी calcium channels को खोला जाएगा. It means one point of interaction for the patient can be this one. By changing that membrane potential, we can determine how much calcium should enter, how much neurotransmitter need to be released at the postsynaptic membrane. So the first step is arrival of the action potential and causing the opening of the calcium channels depending upon the magnitude of the action potential. So once the calcium channels opens, then from the extracellular space around the neuron, calcium enters there. So calcium entry is there and that entry will be determined by the magnitude of the action potential coming over there. Binding of the calcium, next step is binding of the calcium with the protein present there, synaptobrevin. It causes phosphorylation
of that particular protein. This point can also be intercepted chemically by the drugs. Then interaction of the synaptobremin, that is vesicles are there. Vesicles containing the neurotransmitter, they are there. So with syntaxin, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन अब आ गई, वहां पे ये प्रोटीन मौजूद है जिसको हम कह रहे हैं सिंटैक्सिन. सो देयर इज द इंटरैक्शन ऑफ द सिनेप्टोब्रेविन विद द सिंटैक्सिन एंड दैट विल कॉज बर्स्टिंग ऑफ द vacuoles or vesicles and release of the neurotransmitter will be there. So the calcium entry, amount of the calcium entry will determine how many vesicles are going to release their neurotransmitter, will be determining the type of the response of the postsynaptic cell. So vesicles fuses with the membrane and causes the release of the neurotransmitter, and the amount of neurotransmitter release is dependent upon the amount of the calcium entry. ठीक है, वो कहाँ रखिए. हाँ मुझे पता है, मैं खुद ही छोड़ रहा हूँ कि मेरा भी मुंह रुक जाता, मुझे पता लग जाता टाइम का कि मेरा टाइम हो गया. ठीक है, पधारो, आपका काम हो गया, मेरा भी हो गया.